everyone. I hope that you all are well and safe at home. Today we are going to start a new topic or chapter, we can say, that is polynomials. So before studying polynomials, we have to study about some kind of terms which are related to polynomials. Okay, as you can see, constant, variables, algebraic expressions, terms of an algebraic expressions, these kind of terms we need to study. Okay, so first of all we are going to study about constant. What is constant? Constant क्या होता है बेटा? How many numerical values we are having, they are known as constant. They are known as constant. Numerical value means जितने भी numbers हम use करते हैं, positive numbers, negative numbers, they are known as numerical value. और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Constant बोलते हैं. जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं? +5. +5 is a numerical value, is a number. We can say -5, we can say +3, we can say -3. These all are the numbers which are known as constant. Okay. Now variables. Variables क्या होता है? Variables which are connected. Variables क्या होता है? Variables are the letters. Variable are the letters which are connected with constant, or we can say which are connected with numerical value. They are known as variables. Like if I am writing 2x, that means x is connected with numerical value 2. So this x is a letter which is known as variable. Which is known as variable. If I am writing 2a square, that means what? A square is connected with 2 and a is a letter which is connected with numerical value. So we can say a is a variable. Okay. If I am writing only x power 3, now you will see that it is not connected. No beta, it is also connected, as 1 is also here because it is 1 time of x cube. It is 1 time of x cube. That means there is a numerical value 1. Okay. So we can say the variables are letters which are connected with the numerical value are known as variables. Okay. Next one, there is a algebraic expression. Algebraic expression क्या होता है? Algebraic expression क्या होता है बेटा? जो constant और variable का क्या होता है? Connection होता है. Variables और constant जब connect होते हैं, और वो भी कैसे connect होते हैं? कुछ operations के साथ में. Operations कैसा? जैसे कि plus, minus, multiply और divide. इस तरह के ऑपरेशन जब हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं, दे आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जैसे हमारे पास जस्ट सपोज यहाँ पे 2x है, मैंने 2x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है और 2 उसका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. इसके साथ में मैंने क्या किया? वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ में कनेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, 3 लिख दिया. तो ये क्या है? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया? वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कुछ ऑपरेशंस के साथ में क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है. यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे क्या है? आपका एडिशन. और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं. तो जब व्हेन वी आर कनेक्टेड constant value and variables with some kind of operations like positive, मतलब addition, subtraction, multiplication or division. So this kind of connection is known as algebraic expression. As we can see, we can also write 2x square plus y plus 3. तो यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि कनेक्टेड हैं किससे? कुछ ऑपरेशन से. एक पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यहाँ माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेटिव का साइन आ गया. यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2y3 of x square plus 5. यहाँ पे ये क्या है? डिवीजन भी है. तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है. इनके साथ में जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके. अब इसमें क्या है? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कि मतलब उसमें हम टर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी चीज डिवाइड में या मल्टीप्लिकेशन में लिखी होती है तो वो टर्म एक ही बनता है. जैसे मैं आपको लिखता हूं 2a. आप यहां देख रहे हो a और 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये टर्म कैसे काउंट होगा? एक ही काउंट होगा. अगर मैं लिख देता हूं a/2, अब यहां पे 2 क्या है? डिवाइड में है, तब भी ये टर्म क्या काउंट होगा? एक ही टर्म काउंट होगा. लेकिन अगर मैं यहां पे +5 लिख देता हूं, ठीक है, +5 का मतलब क्या हुआ? मैंने यहां पे प्लस करके कोई वैल्यू लिख दिया, तो यहां पे अब टर्म क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं. अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म पूछेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे? 2 टर्म हो जाते हैं. क्योंकि जब भी हम किसी भी वेरिएबल्स को क्या करते हैं? प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं. किसके साथ? प्लस के साथ और माइनस के साथ. दैट मीन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं,
तब वो टर्म्स में डिवाइड होता है। अदरवाइज अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में करोगे तो वो एक टर्म ही काउंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और समझाता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कनेक्टेड है 2/3 के साथ, राइट, और दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये टर्म क्या होगा, एक ही काउंट होगा। अब जब इसके साथ में मैंने -3 लिखा जैसे, तो ये आपका दूसरा टर्म काउंट होगा। दैट मीन प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए, तब आपके टर्म्स में वो चीज डिवाइड होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3/+5, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पे ये एक ही टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक ही टर्म काउंट होगा। दूसरा ये आपका काउंट होगा, तीसरा ये काउंट होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है प्लस का साइन है। इस तरह से ये टर्म्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे डिफाइन होते हैं, एडिशन से और सब्सट्रैक्शन से। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होगा तो वो टर्म एक ही काउंट होगा, हम उसको टर्म को अलग अलग से काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर टर्म ही होता है। अब आ जाता है कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट मैं आपको बताता हूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में कनेक्ट होती है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2x, ठीक है, तो x एक वेरिएबल है, x के साथ में 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में कोई वैल्यू लिखी होती है तो वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पे a²/2, दैट मींस क्या है, ये a² के डिवाइड में कितना लिखा है, 2 लिखा है। दैट मींस यहां पे 2 क्या है, डिवीजन में, तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 1/2 × a²। तो यहां पे a² एक वेरिएबल है और ये 1/2 उसका क्या है, कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट को आपको हमेशा क्या लेना है, साइन के साथ में लेना है। जैसे आप यहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि -3y लिखा हुआ है, इस -3y में y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट केवल 3 नहीं होगा, इसके साथ में -3 साइन लगा हुआ है। याद रखना, कोई भी नंबर का साइन उसके हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ना कि राइट साइड में, याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि y कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, y के आगे यहाँ राइट साइड में क्या पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि y पॉजिटिव है, y के लेफ्ट साइड में क्या साइन है वो मैटर करता है। तो लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं कि नंबर जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे y का जो y के साथ में कितना लिखा हुआ, -3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो कोफिशिएंट क्या होता है कि जो वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में कनेक्ट होती है, दैट वैल्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ओके बेटा, तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन involving variables have only non-negative integral powers। क्या लिखा हुआ है, have only non-negative integral power। इसका मतलब समझते हैं। यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है, समझते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब जो वैल्यू नेगेटिव ना हो, दैट मीन पॉजिटिव हो। इंटीग्रल पावर, दैट मीन पावर में कोई वैल्यू हो और वो क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो कनेक्शन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। हम लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम जैसे लिखते हैं 5x² माइनस में 3y और प्लस में 2। यहां पे आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, एक x है एक y है, ये कनेक्टेड है न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो ये क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने बोला कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए इन्वॉल्विंग वेरिएबल, वेरिएबल भी है, हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। दैट मींस वो पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां पे आप देख पा रहे हो कि x की पावर कितनी है, 2 है, तो x की पावर 2 है और यहाँ पे ये वेरिएबल्स के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 5/x² माइनस में 3y + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देखो यहां पे कि 5/x² लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, x⁻² ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाती है, x⁻−2 हो जाएगी, हो जाएगा माइनस में 3y और प्लस में 2। अब यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, और उन्होंने क्या बोला था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर पावर नेगेटिव है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। इज दैट क्लियर? तो पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए और उसके साथ में उसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तब वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब बेटा पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, कुछ डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
आपको मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल्स में 1 वेरिएबल भी होते हैं, 2 वेरिएबल भी होते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो कितने वेरिएबल्स का है, यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो यहाँ पे कितना है, ये आपका पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स का। अब यहाँ पे इसकी डिग्री कैसे काउंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल आता है, पहले तो आपको एक्सप्रेशन कैसे चाहिए, 1 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं 2a³ प्लस 5a स्क्वायर माइनस में 3। यहाँ पे आप वेरिएबल देख पा रहे हो, वेरिएबल क्या है, a है, सभी जगह क्या यूज हुआ है, a। दैट मींस ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है ये, ठीक है, 1 वेरिएबल है। अब इसमें आपको क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। तो जब भी 1 वेरिएबल की आपको डिग्री पूछते हैं तो 1 वेरिएबल जो भी वहां पे गिवन होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर वहां पे होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। दैट मींस यहां पे आप देख पा रहे हो a की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a की पावर कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। तो जब भी आपसे डिग्री पूछते हैं पॉलिनोमियल की जो कि 1 वेरिएबल का है, कौन सा है, 1 वेरिएबल का है, तो 1 वेरिएबल में आपको क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। उसमें हाईएस्ट पावर जो भी होगी उस वेरिएबल की, वो उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। अब आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 और मोर वेरिएबल्स होंगे तो क्या करेंगे, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं फिर समझना है। जैसे यहां पे एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर y प्लस में x y स्क्वायर, x y को 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है। यहां पे आप चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पहले तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हमें पावर्स चेक करनी है। पावर्स क्या है, पॉजिटिव है, दैट मींस ये एक पॉलिनोमियल है। पावर्स अगर नेगेटिव होती, एक भी पावर अगर आपको नेगेटिव मिल जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप वेरिएबल देख रहे हो, तो वेरिएबल एक x है यहाँ पे और एक y यूज हुआ है, मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल है। क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अब आपको इसकी डिग्री निकालनी है, क्योंकि अगर सिंगल वेरिएबल होता तो हम हाईएस्ट पावर चेक कर लेते, लेकिन अब क्या करना है, अगर 2 वेरिएबल्स है तो आप उनमें देखो जो पर्टिकुलर टर्म है, यहाँ पे टर्म कैसे डिफाइंड होता है, मैंने आपको बताया प्लस और माइनस के साथ टर्म डिफाइंड होता है। मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म ही होता है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इन चारों टर्म में आपको देखना है कि जो टर्म्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, जो वेरिएबल्स हैं उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है। यहां पे आप जो वेरिएबल देख रहे हो x की पावर यहां पे कितनी है, 2, तो इतनी ही हो सकती है। इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इस टर्म में जो वेरिएबल है वो 2 है, इन दोनों की पावर को हमें क्या करना है, काउंट करना है। x की पावर 2 है और साथ में y की पावर कितनी है, 1 है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितनी हो गई, 3 हो गई। यहां पे चेक करते हैं, यहां पे x की पावर 1 है और y की पावर 3 है, दोनों को ऐड करने के बाद पावर कितनी बन जाती है, 4 बन जाती है। दैट मीन इस टर्म में तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल ही नहीं है, तो पावर कितनी है, 0। यहां पे 2 है, यहां पे कितना है, 3 है, यहां पे कितनी है, 4 है। तो हाईएस्ट पावर आपकी जो टर्म है वो कितनी है वेरिएबल्स की, 4 है। तो आपका यहां पे डिग्री कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। क्या हो जाती है, डिग्री 4। तो आपको क्या करना है, अगर आपके डिग्री आपको निकालनी है जिसमें वेरिएबल क्या है, 2 और 2 से ज्यादा है, तो उसमें आप क्या करोगे, पर्टिकुलर टर्म्स में आपको चेक करना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को आप ऐड कर लो, और जो हाईएस्ट पावर वहां पे बनती है टर्म्स में, वही पावर क्या हो जाती है, आपकी डिग्री हो जाती है उस पॉलिनोमियल की। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर और समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2xy प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 6x पावर 3 इंटू y प्लस 3x पावर 4 y स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पहले तो आप इसमें चेक करोगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पावर्स आपको सारी पॉजिटिव दिख रही हैं, दैट मींस ये पॉलिनोमियल है। अब आपको क्या करना है, इसमें टर्म्स का पहले तो हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो पहला टर्म ये है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो ये है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, टोटल पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, टोटल पावर कितनी हो जाती है, 3। यहाँ x की पावर 3 है, y की पावर कितनी है, 1, टोटल पावर कितनी हो जाती है, 4। यहाँ पे x की पावर 4 है, y की पावर 2 है, टोटल पावर कितनी हो जाती है, 6। और 5 के पास में तो कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मींस उसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की 0, तभी वहां पे क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है। याद रखना, अगर आपसे पूछते हैं कि 5 लिखा हुआ है या कोई 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की, तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 0 होगी।
क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी, तभी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1। किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जब ये x पावर या कोई भी टर्म आपका कोई भी वेरिएबल होता तो यहाँ पे उसकी पावर कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, और 1 into 5 हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे जो टर्म है इसकी पावर कितनी है, 2 है, इस टर्म की पावर कितनी है, 3 है, इसकी 4 है, इसकी 6 है। तो इस टर्म में सारे जो पॉलिनोमियल है इसके सारे टर्म्स में हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 6। दैट मींस इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाती है। ओके, तो आपने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले ये चीज समझो, पॉलिनोमियल होता क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। दैट मींस जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। दैट मींस जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर अपने क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नेचुरल नंबर। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देके देता हूं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं लिख देता हूं 2√x प्लस y प्लस 3। तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल बन सकता है? कैसे? आप देखो यहाँ पे अगर x की जो रूट है उसकी पावर को मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, प्लस में क्या लिखूंगा y, और प्लस में क्या लिखूंगा 3। अब यहाँ पे इसकी पावर तो 1 है, ये आपका पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल का है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि x की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अगर इसमें जो पावर है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, एक आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल के लिए जो पावर चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो आपको जितने भी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मिलेंगे उसमें आपको चेक करना है कि अगर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या आती है, पॉजिटिव होती है, तो वो पॉलिनोमियल बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, उनका पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो आपने देखा कांस्टेंट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लाइक numbers 0 1 2 3 4 5 6 -5 -6, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होता है, जो नंबर्स के साथ में कनेक्ट होती है लेटर, उस लेटर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे x y z a b c, दैट मींस a to z जितने भी लेटर्स हैं अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कनेक्टेड हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। Algebraic expression, that means the combination of constant and variable by using some kind of operation like addition, subtraction or multiplication or division. They are known as algebraic expression. आप देख ही पा रहे हो, और algebraic expressions में ही क्या आपको क्वालिटी चाहिए कि algebraic expression इस तरह का चाहिए कि उसकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, दैट मींस नेचुरल नंबर हो, तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अब आपने सीखा कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या एक वेरिएबल है, हमेशा वेरिएबल का ही कांस्टेंट कोफिशिएंट हम निकालते हैं। तो वेरिएबल के साथ में जो भी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ में लिखी होती है, वही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, उसका कोफिशिएंट, और उसको आपको साइन के साथ में लेना है। जैसे आप यहाँ अगर मैं पूछूंगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे +2। अगर मैं आपसे पूछूंगा एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो -6 होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा एक्स वाई पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो +5 होगा। दैट मीन जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है वो साइन के साथ में लेनी है, वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अब आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको चेक करना है कि उसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, उस सिंगल वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिसमें 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल आपके हैं, उसमें आपको क्या करना है, पर्टिकुलर टर्म्स का डिग्री, पहले हाईएस्ट पावर निकालनी है और उनमें से देखना है कि जो हाईएस्ट पावर निकल रही है वो आपकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। जैसे आपने यहां टर्म में निकाला था, इन दोनों के आपने पावर्स को क्या किया, दोनों वैल्यूज की पावर को ऐड कर दिया और उसमें आपने पावर्स को ऐड कर दिया, तो जो पावर आ रही है वो हाईएस्ट उसमें आपने चेक किया तो कितनी आ रही है, 6। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिग्री निकालते हैं पॉलिनोमियल की जिसमें 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। ओके, नोट डाउन प्लीज। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। इसमें आप देख पा रहे हो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दैट मींस जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उसमें कुछ डिग्रीज आपने पढ़ी कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन linear polynomial, like if a polynomial is there and which is having degree 1, just like I'm writing over here
2x प्लस 3। यहाँ आप देख पा रहे हो कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इस तरह का पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री उसकी 1 हो, वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक 5y माइनस 3। यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, और उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इस तरह का पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, अगर मैंने लिखा हुआ है कि 3 है, यहाँ पे क्या है, a की पावर कितनी है हाईएस्ट, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिसमें डिग्री कितनी रिक्वायर्ड होती है, 1 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में आपको क्या चेक करना है, डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 2 होती है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 5। यहां आप देख पा रहे हो कि इस पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल है और उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। एज सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए यहाँ पे 3। यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं y पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस में 5y प्लस 6। यहाँ आप चेक कर लो, यहाँ पे y की यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो जब हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी पॉलिनोमियल की, 3। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, दैट मींस दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एज सेम y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस डिग्री कितना रिक्वायर्ड है, 4। इसमें डिग्री कितनी रिक्वायर्ड है, 4 रिक्वायर्ड है। तो जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि x पावर 4 प्लस 5y पावर 3 माइनस में 3y स्क्वायर प्लस में 5y और प्लस में 6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि y की यहाँ पे पावर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। यहाँ पे ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये आपका 2 वेरिएबल का है, यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे y है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारे टर्म्स में हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपको 2 या 2 से ज्यादा टर्म मिलते हैं पॉलिनोमियल में, तो आपको उनके टर्म्स में चेक करना है कि जो टर्म्स में वेरिएबल दिए हैं उनकी पावर्स में कौन सी हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे आप इस टर्म में हाईएस्ट पावर 1 है, इस टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4 होती है। अब पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि टर्म्स हमेशा डिवाइड होता है प्लस साइन और माइनस साइन के साथ। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो वो सिंगल टर्म काउंट होता है। तो उसमें कुछ नेम्स हम दे सकते हैं उसमें, जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक सिंगल टर्म आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मोनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनोमियल, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं 2x, ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 और x क्या मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो हम उसको क्या काउंट करते हैं, एक ही टर्म काउंट करते हैं। तो जहां पे ऐसा पॉलिनोमियल हो जहां पे केवल एक ही टर्म हो, दैट मींस टर्म कितना हो, यहाँ पे एक ही हो, तो एक टर्म के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू दैट आई एम राइटिंग 5y, तो ये भी क्या होगा, एक मोनोमियल होगा। नेक्स्ट बाइनोमियल, तो यहाँ पे टर्म कितने होने चाहिए, यहाँ पे टर्म्स हो जाते हैं आपके 2। जब 2 टर्म होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x माइनस y, तो यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये, क्योंकि दोनों किससे कनेक्टेड है, माइनस साइन के साथ। तो जब भी कोई टर्म्स माइनस साइन या पॉजिटिव साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम टर्म काउंट करते हैं। अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 5x प्लस 3, तो यहाँ पे भी 5x और 3 दोनों किससे कनेक्टेड है, प्लस साइन के साथ, दैट मींस एक टर्म काउंट हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो जब भी आपके टर्म्स कितने हो, 2 हो पॉलिनोमियल में, तो वो टर्म आपके पॉलिनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल होगा। अगर टर्म कितने हो, 3 हो, टर्म्स कितने हो, 3 हो, तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 5x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 6, यहाँ पे आप कितने टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि तीनों किससे कनेक्टेड है, प्लस साइन से कनेक्टेड है, तो हम इनको क्या काउंट कर सकते हैं, टर्म काउंट कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, सो वी कैन से इट इज ट्राइनोमियल। Okay, so on the basis of term, we can just give a particular name to a polynomial like monomial, binomial, or trinomial. On the basis of degree, we can give linear polynomial if polynomial is having degree 1. If a polynomial is having degree 2, we can say quadratic polynomial. If a polynomial is having degree 3, we can say cubic polynomial. If a polynomial is having degree 4, we can say y-quadratic polynomial. So on the basis of degree and on the basis of terms, we can just give particular name to the polynomial. Okay. Some more polynomials are there like constant polynomial. Constant polynomial क्या होता है कि जो भी constant numbers होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया numerical value, उनको हम काउंट करते हैं एज अ constant polynomial। जैसे मैं अगर लिख दूं 5,
5 एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे -4 भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ लिख दूं -6, ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये मैं आपका लिख देता हूँ 2/3, ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल क्या है कि अगर आपका कोई भी नंबर, मैं डायरेक्टली सीधा क्या लिख दूं, जीरो लिख दूं, तो जीरो को हम काउंट करते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। यहां पे तो आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप देखो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 है, तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने 5 के साथ लिख दिया 5a⁻0, क्योंकि यहां पे जिस नंबर की पावर 0 होती है, किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पे अगर मैंने लिख दिया 5a⁻0, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 5। दैट मींस 5 के साथ में जो डिग्री है वो वेरिएबल की, वो कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट मींस अगर हम आपसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन हम जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल केवल एक जीरो नंबर होता है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री आप देख सकते हो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। नोट डाउन प्लीज।